now सबसे पहले let's understand what are the forms of organization where we have this share capital. The first form of organization, business organization, we studied is what? Sole proprietor. Sole proprietor यानी क्या? अकेला इंसान और उसका बिजनेस, उसका फायदा क्या है? सारा प्रॉफिट मेरा, isn't it? सारे डिसीजंस भी मेरे, बट डिसएडवांटेज भी है. Me, only me doesn't work because I have my own limitation of bringing money in the business. Okay, limitation of expertise. Okay, तो मैं क्या करता हूँ? सोल प्रोप्राइटर से इवॉल्व होके मैं बनाता हूँ एक पार्टनरशिप. Again, when I go into partnership, what happens? I have a limited number of partners can only become my limited number of people can only become my partners. तो मेरा बिजनेस एक से अनेक हो गया, बहुत पैसा चाहिए था तो मैंने और पार्टनर्स ले लिए. पार्टनरशिप में also we have a limit that maximum we can have only 50 partners. तो हम क्या करते हैं? अच्छा वो तो है, बट 50 पार्टनर्स मैंने बना लिए, बट फिर भी ये पार्टनरशिप फॉर्म का क्या डिसएडवांटेज है? बिगेस्ट डिसएडवांटेज. See, partnership का biggest disadvantage is unlimited liability of partners. यानी अगर business में losses हुआ, तो I have to sell my personal asset to pay the losses of the business, and that is why partnership से we want to turn into a corporate. In corporate, we can be a private limited company, but इसका भी limitation है. It's a private limited company, so closely held. But I want कि पूरे हिंदुस्तान में से कोई भी मेरा पार्टनर बन सकता है. ओवरसीज में भी कोई है तो वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है. तो आई वांट टू ग्रो बिगेस्ट, तो मैं बनाऊंगा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. नाउ सिंस it's a public limited company, what's the problem with public limited company? Or I would say कि what is a public limited company? अगर मैं एक public limited company बनाता हूँ, तो मेरे partners कौन हैं? General public. There will be hundreds of thousands or lakhs or crores of my partners. Now the money is of common people. आज एक कंपनी किंगफिशर एयरलाइन गायब हो गया ना स्टॉक मार्केट से, तो जो भी शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा तो गया. तो यहाँ पे पब्लिक का पैसा है, इसके लिए इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज एक्ट. इफ इट इज लिस्टेड देन इट विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी. बराबर है ना? Securities Exchange Board of India. तो because it's a public limited company, public का पैसा लगा है, तो उसको कोई रेगुलेट करता है. किसी की भी मर्जी आई जाके वो चालू नहीं कर देगा एक कंपनी. Okay? It is the money of common people, and that is why there has to be some regulations on it, because public का पैसा involved है. तो जो भी companies है which are incorporated under Indian Companies Act are governed by rules and regulations of Companies Act. If they are listed, तो फिर SEBI आ जाता है. Okay. Now, ये जो public limited company है, वो कैसे पैसा public से लेता है? That is what we are going to learn. यहाँ पे जो owners हैं, they are common people. तो ये जो पैसा common public देता है public limited company को, that is basically a share capital. Okay, तो कंपनी क्या करेगा? पैसा लेगा और उसके सामने उनको एक शेयर मिलेगा. ठीक है. नाउ ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक को मुझे पैसा पब्लिक से मुझे पैसा लेना है, तो मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ? What should I do? Okay, say for example, I want to take money from public. ठीक है, मुझे ऐसी इच्छा हो गई कि मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लूं,
ओके, दिस इज ऑल फिक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ. ओके, रियल में तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके, हाइपोथेटिकल कि मान लो कि मुझे कंपनी लॉन्च करनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. मैं चाहता हूँ कॉमन पब्लिक मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे. फायदा यही है पब्लिक से पैसा लेने में कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दूंगा, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे है कि डिविडेंड देना कि नहीं देना. ओके, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अंडरस्टूड दिस? नाउ हाउ डू आई form a public limited company? I'll fill up do the necessary procedures and all. Okay, अब मैं पब्लिक से मान लो I want to take 20 lakh rupees from public. I want to issue 2 lakh equity shares of rupees 10. Now what is this rupees 10? Rupees 10 is known as the face value. Face value is the basic value of share. You understood this? Say for example, एक कॉइन है मेरे पास, उसके ऊपर लिखा है 1 रुपीज. ठीक है, बट ये जो कॉइन है, ओके, ये मिंट हुआ था 1940 में. तो क्या आज 1 रुपए का सामान लेने जाऊंगा तो ये कॉइन में दे दूंगा? ये कॉइन है सिल्वर का. Will I give this 1 rupee coin if I want to buy a chocolate of 1 rupee? Will I give this coin? इसका फेस पे वैल्यू कितना है? Can I say that's the basic value of this coin? That is ₹1. But can I say उसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है? Anything above the face value is known as premium. Can I say profit? Can I say profit? 1 रुपया था, पर आज मार्केट में उसके 400 रुपए मुझे मिल रहे क्योंकि वो कॉइन बना था सिल्वर का. Understood this? So what is the face value? Face value of the share is the basic value of the share. Understood this? Okay. I may take more money than the face value. Less money than the face value was allowed previously, but now as per the new Companies Act you cannot issue shares at a discount. Okay, तो अब जो फेस वैल्यू है, या फेस वैल्यू पे तुम इश्यू करो पब्लिक को दो, या फिर उससे कुछ ज्यादा, which is known as at a premium. Understood this? Now if I am issuing shares at face value, I will say these shares are issued at par. At par means at the same face value I am giving shares to my shareholders or to the general public. Understood this? Are you able to understand the concepts? Face value पता चला क्या है? Face value यानी basic value. समझ में आया? तुम्हारे पास अगर 40 साल पहले का 10 रुपए का नोट है, it has an antique value. बट उसके ऊपर फेस वैल्यू कितना है उसका? ₹10. So that's the basic value. Understood this? Okay. Now, when I give shares at face value, I say they are issued at par. तो मुझे 2 लाख के shares of ₹10, so total 20 लाख रुपए मैं पब्लिक से लेना चाहता हूँ. Understood this? Now, मैंने कंपनी बना लिया और 20 लाख रुपए में पब्लिक से कलेक्ट करना चाहता हूं. तो क्या ये 20 लाख रुपए जो मैंने डिसाइड किया वो मेरी मर्जी से डिसाइड करूंगा मैं? तो फिर मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरी कंपनी का तो बहुत नाम है, मेरा जो अभी बिजनेस है तो बहुत जोरदार चल रहा है, तो 20 लाख छोड़ो, मैं 2 करोड़ ले लेता हूँ लोगों से. लेने में क्या प्रॉब्लम है? लोग तो देने को तैयार है. तो क्या होता है? Whenever you form a company, okay, you have to decide on how much total amount of share capital will be raised for this company now and in future, and there is a limit for that. उसका permission लेना पड़ता है मुझे, okay, as per Indian Companies Act. Okay.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाके मुझे परमिशन लेना पड़ेगा कि ये कंपनी में मैं 20 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल बनाऊंगा by taking money from people, by taking money from general public or from some financial institutes. Okay, तो ये जो 20 लाख है उसका I will take a permission and this is the maximum amount I can collect from the people, or I can say कि 2 lakh equity shares are the maximum number of shares I can issue to people. Now, I'll give you an example to make you understand this. अब 2 लाख है, 20 लाख मिलेगा, पर अभी मुझे 20 लाख का जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पब्लिक से पैसा ले लिया और उस पैसे को मैंने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रॉफिट होगा नहीं, आइडल फंड्स रहेंगे, आइडल फंड्स रहेंगे तो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना पैसा ले लिया कंपनी ने तो व्हाई कंपनी इज नॉट गिविंग एडिक्वेट रिटर्न्स. तो अभी एज ऑफ नाउ आई वांट टू टेक ओनली 10 लाख फ्रॉम द पीपल, ओनली रुपीज 10 लाख. तो मैं नक्की करता हूं कि 1 लाख शेयर्स आई वांट टू इश्यू टू पीपल. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? नाउ ये जो 1 लाख है वो मैंने डिसाइड कर दिया कि अब मैं राइट नाउ एज ऑफ नाउ 1 लाख शेयर्स ही मुझे इश्यू करना है. सो दिस शेयर्स आर व्हाट आई वांट टू इश्यू, सो दे आर नोन एज माय इश्यूड कैपिटल. ये जो लिमिट है 20 लाख का या 2 लाख शेयर्स का, इसका परमिशन लिया है मैंने maximum, so that is known as my authorized capital. What is the meaning of authorized? जिसका मुझे अप्रूवल या परमिशन मिला है. It is also known as registered capital or nominal capital. Understood this? It is just a permission. Okay, इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग एंट्री आएगा नहीं. ये जो इश्यूड है वो मैं इश्यू करना चाहता हूं, तो these are just numbers कि 1 लाख शेयर्स में पब्लिक को देना चाहता हूं. समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, न्यूज़पेपर, रेडियो, होर्डिंग्स, ओके, और मैं पब्लिक को इनवाइट करूंगा कि मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो. बराबर है? तुमने देखा अभी एक IPO आया था बाय दिस नेम डीमार्ट. डीमार्ट पता है तुम सबको, इट्स अ वेरी पॉपुलर रिटेल आउटलेट. एवेन्यू सुपरमार्ट इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड द ब्रांड इज डीमार्ट. सबको पता है. नाउ ये जो डीमार्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि दे वांट टू इश्यू 6.2 करोड़ शेयर्स. 6.2 crore shares of face value ₹10 at there's a price band कि ये प्राइस रेंज में हम पब्लिक को शेयर देना चाहते हैं. उसका प्राइस बैंड था 295 से 299. यानी पब्लिक जो अप्लाई करेगा उसका जो प्राइस नक्की होगा it will be between either 295 to 299. यानी 10 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है that is its प्रीमियम. समझ में आया? बेसिक वैल्यू कितना है, बट पब्लिक को मैं देना चाहता हूं either at 295, anything between 295 to 299. now लोगों ने क्या किया? It's a very popular brand. Okay, D-Mart is a very popular brand. So people, and it was at a very good price. So people started applying. उन्होंने advertisement किया newspaper में, hoardings, TV commercials, and people started applying for it. और ये 6.2 crore shares जो देना चाहते थे, वो subscribe हुआ 104 times. What is 104 times? यानी 6.2 करोड़ शेयर में देना चाहता हूं,
but public have applied for 620 crore shares. You understood the magnitude? 100 times over subscription. समझ में आया? Okay, यानी they were planning to collect 1800 crore. पर हुआ कितना पैसा, कितना लोग देने को तैयार है? 1800 into 100. Understood this? 1,80,000 crore. तो कंपनी को ग्रीड आ गया, लालच आ गया कि ले लो, ले लो, ले लो. Can they take this money? पब्लिक तो देने को तैयार है. अब हम 40 नहीं 400 स्टोर खोल देंगे. पब्लिक देने को तैयार है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? Can they do this? You may go home and Google. हाँ, DMart IPO लिखोगे ना तो आ जाएगा. उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन है. तो क्या कंपनी ये पैसा ले सकते हैं? पब्लिक तो देने को तैयार है. Because it's a public limited company, there are rules and regulation. जितना इश्यू करना है उतने ही शेयर्स they can issue. Understood this? Okay? समझ में आ गया? लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब होता है, से फॉर एग्जांपल 1 lakh shares, that is known as subscribed capital. Understood this? लोगों ने जो सब्सक्राइब किया 1 लाख में से 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, लाख के बदले 2 लाख, बट मैक्सिमम कितना इश्यू कर सकता हूँ? 1 lakh. So that is my subscribed capital. Understood this? आज की तारीख में डीमार्ट का भाव 1090 के आसपास है. It has almost increased by 2 times more than what was initially taken from the people. 1000 रुपए से ऊपर चला गया. 1090 के आसपास है उसका प्राइस. Okay, this is how the company is, and that is why you can see the interest of common people to buy the shares. One share लेने के लिए 100 लोग ready है. Can I say like this when it is 104 times? Understood this? You understood this concept? Now, हम कब active होंगे accountants? Because ultimately हमें क्या करना है? We are doing accounts. ठीक है? तो हमें ये सब इसका हिसाब रखना है, जो पब्लिक से पैसा आया. Okay? तो हमें क्या करना है? हम कब एक्टिव होंगे? नाउ ये 20 लाख मैक्सिमम अमाउंट और ऑथोराइज कैपिटल, उसके लिए कोई भी अकाउंटिंग एंट्री आएगा? कोई भी अकाउंटिंग एंट्री आएगा? इज इट अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इट्स अ कैप, इट्स अ परमिशन, इट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल. अंडरस्टूड दिस? लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर्स में इश्यू कर सकता नहीं हूं. पर यूजर नहीं सर अभी आपको और पैसा चाहिए तो आई हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, आई हैव टू पे द फीस, टेक द अप्रूवल एंड देन ओनली गो फॉर इट. अंडरस्टूड दिस? देन मान लो ये किंगफिशर ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट हो रहा था, तो वो ऐसा नक्की करेगा कि अब मुझे और भी शेयर्स इश्यू करने, ऑथोराइज से भी ज्यादा, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा. जैसे ही वो परमिशन लेने जाएगा, परमिशन मिलेगा नहीं. दिस इज अ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. अंडरस्टूड दिस? नाउ इसमें तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता. ये तो मैं पब्लिक को देना चाहता हूं, इसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री आएगा? इश्यू करना चाहता हूं, पर क्या अभी इश्यू कर दिया? It's just a number कि I want to issue 1 lakh shares. पर लोग जब सब्सक्राइब करेंगे और मैं पैसा ले लूंगा और मैं उनको शेयर्स दे दूंगा, तब वो मेरा बनेगा issued and subscribed capital. तब आएगा अकाउंटेंट एक्शन में जब मनी कम्स. Understood this? So what we have to do over here in this chapter, we have to understand the flow of how money comes in the company by issuing of shares, and at various stages we have to pass the accounting entry. Why I am saying stages? अभी जो तुम IPOs देख रहे हो, आज ही मेरे घर पे एक फॉर्म आया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का IPO आ रहा है. IPO is initial public
ऑफरिंग। ओके, अभी कुछ समय पहले आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आया, लोगों ने अप्लाई किया है, अभी कुछ दिनों में उसका नतीजा आएगा कि शेयर्स मिलेगी नहीं। तो ये जो है हम क्या करते हैं, अभी जब हम अप्लाई करते तो पूरा पैसा दे देते, बट ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि इफ आई वांट टू कलेक्ट ₹10 for face value, I'll not take this money at one go. I want more participation of common public because it is a public limited company. तो हो सकता है कि किसी के पास इतना फंड्स नहीं हो कि वो एक साथ मेरी कंपनी में 10,000 रुपीस लगा सके। तो क्या करते थे कंपनी विल से एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे हो, यू गिव ₹5। Can I say more people can apply now? You understood the whole idea of a public limited company. अगर तुम्हें पब्लिक से पैसा लेना ही नहीं है, तुम्हें सिलेक्टेड लोगों से ही पैसा लेना है, तो डोंट मेक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मेक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अंडरस्टूड दिस? देन अभी फाइन है लो। सेकेंड, जब हम शेयर्स देंगे, दैट इज नोन एज अलॉटमेंट। वन इज एप्लीकेशन आया मेरे पास, मैंने सब एप्लीकेशन देखा, कुछ डुप्लीकेट था रिजेक्ट कर दिया, कुछ इनकम्प्लीट था रिजेक्ट कर दिया, किसी के चेक्स बाउंस हो गए तो मैंने इन सब को रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, तो मैंने लॉटरी सिस्टम से शेयर होल्डर्स डिसाइड किया, अब मैं उनको शेयर्स देना चाहता हूं, दैट इज नोन एज अलॉटमेंट। आई वांट टू गिव द शेयर्स, अलॉट द शेयर्स। तो अब मैं उनसे मंगाऊंगा ₹3। अंडरस्टूड दिस? ₹3 दे दो और तुम्हें ये शेयर मिल जाएगा, यानी पहले 5 और फिर 3, दैट इज टोटल 8। सेकेंडली, इसका फायदा ये भी है कि why should I take all the money if I am not able to utilize? Let me take money in stages from my shareholders, so that as and when I require, I take the money, utilize, so that I can give better returns to my shareholders. Understood this? तो एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, अब रह गया ₹2। ओके, सो ये मेरा बन जाएगा फाइनल कॉल। जब चाहिए तब आई विल कॉल दिस मनी कि ये पैसा भर लो। तुम्हारा वादा कितने का है? ₹10 का प्रॉमिस है, यू हैव टू पे ₹10 in various installment. Instead of final call, you may also have first call, ₹1 मंगा लिया, and then the final ₹. So total 10 आ गए। Understood this? तो ये चैप्टर में हमें ये देखना है कि at various stages we have to pass the accounting entry. Okay, shares issued at par, and entries when shares are issued at a premium. Understood this? फिर क्या होगा? मैं पब्लिक से पैसा मंगाऊंगा, टिपिकल पब्लिक कुछ पैसा देंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा उस केस में? फिर कुछ लोग एडवांस में पैसा दे देंगे कि भाई एक साथ 10 रुपए ले लो, जब तुम मांगोगे तब तक अपने आप एडजस्ट कर लेना, बराबर है। फिर अगर हमने पैसा मंगाया, लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो हम क्या एक्शन लेंगे? अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे? दैट इज नोन एज शेयर्स फोरफीचर एंड शेयर्स रीइश्यूड। मान लो इसने पैसा नहीं दिया मुझे, तो मैं उससे शेयर्स वापस ले लूंगा और किसी और को शेयर्स बेच दूंगा। ये सब अकाउंटिंग एंट्रीज हमें पास करना है। Now, why I talk so much about all these things? ये सब मैंने इतना सारा क्यों बताया तुमको? Because you understand the flow, how things work. Based on that you make the entries. गोखम पट्टी करोगे ना, तो एक लेवल तक कर पाओगे, ये सब स्टैंडर्ड एंट्रीज है, पर जब तुम फोर फीचर और रीइश्यू में जाओगे, वहां पे तुम्हें कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। Okay, so you understand how things work, and that is how you learn the accounting entry. Page number 58, question number 5. Vaidya Limited of Nadiad Company issued 7,50,000 equity shares of 10 each, and the amount thereon was payable as under. Now,
3 per share on application, 4 per share on allotment, 3 per share on first and final call. यानी मेरा first और final call is the same. Total हो गया 10. All of you understood what is face value? It's the basic value of the share. Okay. इसका significance क्या है बताऊंगा तुम्हें later. Company received applications for, इसको कर लो तुम 8 lakh shares. 8 lakh shares कर दो. ज्यादा एप्लीकेशन आ गए. 8 लाख shares के. Shares were rejected and refunded. Excess shares were rejected and refunded. then हमने क्या किया, जो excess 50,000 shares आए थे ना, वो हमने reject करके उनको पैसा वापस दे दिया. समझ में आया? Okay. Remaining applicants were allotted shares. And remaining applicants were allotted shares. Amount due on allotment and calls were called at appropriate time and were all received on due dates. Past journal entry for the above transaction in the books of the company. Let's start. Now, before we start, I want you all to see a format. ध्यान दो please. तुम क्या करोगे, हर एक सम में ये फॉर्मेट बनाओगे और फॉर्मेट यूज करके ही अकाउंटिंग एंट्रीज पास करोगे, क्योंकि आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हैव अ हैबिट ऑफ फर्स्ट मेकिंग द फॉर्मेट. क्वेश्चन 5, पेज नंबर 58. एप्लीकेशन. What's the amount on application? 3. Allotment. 4. First and final call. First and final call is 3. Total is 10. 10 is the face value. Now, application received. कितना रिसीव किया हमने? 8 लाख शेयर्स माइनस इश्यूड. कितना इश्यू कर सकता हूँ मैक्सिमम? 7,50,000 शेयर्स. सो एक्सेस 50,000 शेयर्स क्या हो जाएगा इसका? रिफंड. इसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैद्य लिमिटेड. Now, dates are not given over here, so not to worry. In the column of date, you can write the serial number. Now, we follow this working, and you also try to understand the concept. I want to issue 7,50,000 shares. ठीक है? तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया, सब कुछ किया, लोगों को इनवाइट किया कि आके अप्लाई करो मेरी कंपनी में, पैसा दो, इन्वेस्ट करो, अच्छा कंपनी है. Now, कितना एप्लीकेशन आया? 8 लाख. तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स में क्या आ रहा है? लोग फॉर्म के साथ पैसा दे रहे हैं. लोग फॉर्म के साथ पैसा दे रहे हैं. So that's the first thing I have to record in my books of accounts. Now, first entry. The first thing what will trigger in our books of accounts is money comes in. So bank account debit. How much? 8 lakh shares into rupees 3. Have a habit of writing this number of shares and amount per share. It will help you to do complicated transaction of forfeiture and reissue. It's a habit cultivate करना. Okay? Now, ध्यान दो. Bank account debit 8 lakh into 3, that is 24 lakhs. 2. ध्यान दो. Can I credit my capital? No, because ये तो पैसा आया है. अभी फॉर्म्स में उसको गो थ्रू करूंगा, डुप्लीकेट फॉर्म्स को रिजेक्ट करूंगा. See, I can only apply per application. ऐसा नहीं हो सकता I can make 2 application. Understood this? मैं 2 एप्लीकेशन कर सकता नहीं हूँ. हर एक एप्लीकेशन में मेरा नाम, मेरा पैन कार्ड नंबर सब कुछ होता है, तो मैं 2 एप्लीकेशन नहीं कर सकता हूँ. ऐसा जमाना था जब लोग मल्टीपल एप्लीकेशन करते थे. कैसे करते थे? सागर देसाई
ठीक है, वन एप्लीकेशन, सागर भाई देसाई, सही में फिर सागर कुमार, ऐसा करते थे लोग, अंडरस्टूड दिस, फिर सागर महेंद्र देसाई, यू अंडरस्टूड दिस, ऐसे करके लोग मल्टीपल एप्लीकेशन करते थे। और अब क्या हो गया, सब कुछ लिंक हो गए, सो मल्टीपल एप्लीकेशंस आर नॉट पॉसिबल, वेबसाइट अलाउ ही नहीं करता, दे से यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। ओके, अगर तुमने फॉर्म्स दे भी दिए तो वो वहां पे लिंक हो जाएंगे सॉफ्टवेयर से, तो यू विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा कैपिटल नहीं बनता, पर पैसा आ गया मेरे बैंक अकाउंट में, सो आई विल क्रिएट अ टेम्पररी अकाउंट। ये पैसा किसके लिए आया, एप्लीकेशन के लिए आया, सो आई क्रिएट अ अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 24 lakh, right? Equity share application account. Now narration B, money received on application. Now ये पैसा आ गया एप्लीकेशन का। अब see there is a timing difference कि आज पैसा आया, फिर it will take some time to process the applications and then I will decide that these are going to be my shareholders. Understood this? तो next entry will be, अब मैंने क्या किया, सब सॉर्टिंग कर दिया, डिसाइड कर दिया कि 7,50,000 शेयर्स के शेयर होल्डर्स कौन होंगे। तो ये जो टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया उसको मैं कर दूंगा रिवर्स। सो नाउ सेकेंड एंट्री विल बी शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 lakhs, ब्रैकेट में 8 lakh shares into ₹3 2। ध्यान दो, अब मेरे शेयर होल्डर्स नक्की हो गए, तो अब ये पैसा मैं रख लूंगा, जो नक्की हो गए उनके पैसा, मेरे उनका पैसा मैंने रख लिया। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से कैपिटल बनेगा, only 7,50,000, 7,50,000 shares into ₹3 per share, 22,50,000। बाकी का क्या हो जाएगा, refund, so to bank account 50,000 shares into ₹3, 1,50,000। Any doubt in this entry? सबसे पहले पैसा आया तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर नक्की कर दिया कौन हो गए हमारे शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट किया उसको कर दिया डेबिट, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नाउ आई एम बिल्डिंग अप माय कैपिटल विद द शेयर होल्डर्स whom I am decided, तो 7,50,000 into 3, capital will always be with the amount of face value. Remember this in life. Understood this? Now, to bank 50,000 into 3, 1,50,000. अब क्या हुआ? Third, एप्लीकेशन हो गया, अब आया अलॉटमेंट, अब मैंने नक्की कर लिया ये मेरे शेयर होल्डर्स है, उनका पैसा भी रख लिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं उनको लेटर्स भेजूंगा, मेलर्स भेजूंगा, और मैं उनको बोलूंगा कि अब तुम्हें इतने शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, अब तुम ₹4 पर शेयर भर दो। अंडरस्टूड दिस? यू गो टू द नियरेस्ट बैंक, आई गिव द लिस्ट ऑफ बैंक, और वहां पे जाके तुम ये पैसा भर दो, तुम्हें शेयर्स अलॉट कर दिए गए। सो नाउ यू गिव द अलॉटमेंट मनी। अंडरस्टूड दिस? नाउ ये पैसा मैं किससे मंगा रहा हूं, मेरे शेयर होल्डर्स से, तो I'll pass the entry equity share, ध्यान देना प्लीज, allotment account debit 7,50,000 into ₹4, 30 lakhs, to equity share capital account,
डायरेक्टली क्यों कैपिटल को क्रेडिट कर दिया? बिकॉज ऑलरेडी दे आर माई शेयर होल्डर्स. I am asking from my shareholders the money which they are supposed to pay. They have agreed in the form that they are going to pay this money to me. So I will not wait for actual money to come. मैं जितना पैसा मंगा रहा हूँ मेरे शेयर होल्डर से मंगा रहा हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्ट उनको कैपिटल में ट्रांसफर कर. Understood this? Now, narration what you will write? Being allotment money due on 7,50,000 shares at ₹4 per share. Understood? Amount due हो गया तो हम उनसे पैसा मंगा रहे हैं. Now क्या होगा? लोगों के पास लेटर चला जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा लोगों के पास, शेयर होल्डर्स के पास, and then they will pay the money. In this sum it is given all shareholders are paying the money. So now fourth what happens? What comes in? Money comes in. So किसको डेबिट करेंगे? Bank account debit. 2. Now, do I need this allotment account? It's a temporary account. To equity share allotment account. Credit. 30 lakhs. कैसा है ये 30 lakhs? I'll write over here in bracket 7,50,000 shares. At the rate ₹4. ये काम खत्म हो गया allotment का. Okay, so application done, allotment is done. Now I want to call the first and the final call. Same way, मेरे shareholders को I'll send a letter कि now you give us first and the final call. So I'll make in my books of accounts first and final call due. So I'll pass the entry 5th. Equity share first and final call account debit. Amount is 7,50,000 shares at the rate ₹3 per share, 22,50,000. To what? To what? To equity share capital. To equity share capital account. 22,50,000. ऑलरेडी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. अभी पैसा मिला नहीं है, ध्यान देना, ये सब आएगा आगे. अभी पैसा मिला नहीं है, पर मुझे मेरे शेयर होल्डर से ही पैसा लेना है. They had already committed when they applied. तो मैं I will not wait for them to give the money. It will be immediately transferred to my capital. I'll make it due. Understood this? Okay. You understood when I say I will make it due? Due कर दिया, outstanding लिखा कि इतना पैसा शेयर होल्डर से लेना है. If I close this books of accounts and this is on 31st March, तो मेरे books of accounts में capital भी आएगा. Okay, it will be on the liability side. और मेरे books में asset भी आएगा because this is the amount which I have to receive from shareholder, just like my debtors. Understood this? Okay, now they come up and give the money. Which account will debit? Money comes in bank account debit. पूरा पैसा मिल गया. 7,50,000 shares into ₹3. 22,50,000. To equity share. Do I need the temporary account now? Not required. To equity share first and final call. 22,50,000. Narrations very simple. When it is due, you write the entry being amount due on allotment, being amount due on first and final call. When you receive, make receipt of first call on so many shares at rupees so and so. Understood this? Simple narrations. Okay. Now, लिख लिया सबने ये? Okay. Now, if you combine all the entries, if you combine all these entries, okay, entry 1 to entry number 6, क्या हो जाएगा? ध्यान दो. बैंक 8 लाख शेयर से डेबिट, 50,000 से क्रेडिट, तो 7,50,000 का पैसा मिला. Then application credit, application debit,
allotment debit, allotment credit, first call debit, first call can I say ये सब जीरो हो गया, तो रह क्या गया? Bank account debit to capital account credit. Started business by bringing cash. So what's entry? Cash to capital. वैसे हम क्या कर रहे हैं? We are building up our capital. But because there is a timing difference, ये सब एक ही moment पे नहीं होता है. It is at various stages. We have to pass entries like this. This order should not change. You understood this? Okay. ठीक है.